Hello kids, welcome back to our English class. So today we are going to revise a poem called How the Little Kite Learned to Fly. So kids, I know you had a long vacation. Now it is time to get back to our studies. Okay? So we will start with the poem How the Little Kite Learned to Fly. Okay? सो ये एक पोएम है जो हमने ऑलरेडी सीखी हुई है. सो आई होप यू रिमेंबर व्हाट दिस पोएम इज़ अबाउट. मैं आशा करती हूँ कि आपको याद है कि ये पोएम किस बारे में है. सो कैन यू टेल मी व्हाट दिस पोएम इज़ अबाउट. दिस पोएम इज़ अबाउट ओवरकमिंग योर फियर्स. अपने डर पे काबू पाने के बारे में ये पोएम है. सो इस पोएम में हम देख सकते हैं इट इज़ अबाउट अ काइट. काइट मीन्स पतंग जो आपने कभी देखी होगी या फिर कभी ना कभी उड़ाई होगी. सो एज द नेम सेज हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई. सो ये एक पोएम है जो एक काइट के बारे में है जिसने उड़ना सीख लिया है. उसने कैसे ये अपनी उड़ान भरी, कैसे अपने डर को काबू में पाया, उसके बारे में ये पोएम है. सो दिस पोएम इज अबाउट हाउ द लिटिल काइट मीन्स ये छोटा सा पतंग. दिस लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई एंड दिस पोएम इज रिटन बाय सी कैथरीन पाइल. It is written by Catherine Pyle. Say again, it is written by Catherine Pyle. Okay. So before learning this or revising this, what are we going to do, kids? We are going to read it slowly. We are going to read it slowly. And before reading this, we will revise some new words here. See here, tranquil. Actually, this is exercise, but we have already finished this poem, so we will just revise it. Tranquil means undisturbed, calm. Tranquil means undisturbed, calm. Tranquil means shant. Trembling means shaking with fear or excitement. Trembling means kampna. Whirling means swinging round and round. गोल गोल घूमना. Steadily means without shaking. आराम से, शांति से, एक ही गति से, without shaking. Thrilled means very excited, बहुत excited होना, खुश होना. Pride means a fear of achievement. किसी चीज़ को जीतने के बाद या फिर पाने के बाद जो फीलिंग आती है, जो एक गर्व आता है, उस गर्व को क्या कहते हैं? Pride. So let's start with the reading part. Okay, so what are we going to do? We are going to read it slowly. Okay, I'll read, you need to repeat after me. Okay. I never can do it, the little kite said as he looked at the others high over his head. I know I should fall if I tried to fly. Try, said the big kite, only try, or I fear you will never learn at all. But the little kite said, I'm afraid I will fall. The big kite nodded. Ah, well, goodbye. I'm off. And he rose towards the tranquil sky. Then the little kite's paper stirred at the sight, and trembling he shook himself free for flight. First whirling and frightened, then braver grown, up he rose through the air alone, till the big kite looking down could see the little one rising steadily. Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the kite side by side, while far below he could see the ground and the boys like small spots moving around. They rested high in the in the quiet air, and only the birds and clouds were there. Oh, how happy I am! The little kite cried, and all because I was brave and I tried. So, we have finished reading. Let's start learning. Okay? So, see here, kids. This poem is about the conversation between two kites. We have two kites here, the little kite and the big kite.
इस पोएम में हम देख सकते हैं कि दो काइट हैं, एक छोटा काइट है और एक बड़ा काइट है, और इन दोनों के बीच में जो संभाषण हो रहा है, जो बातें हो रही हैं, उन्हें हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहले कौन कहता है? लिटिल काइट। लिटिल काइट क्या कहता है? आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड। लिटिल काइट जो है वो क्या कहता है? आई नेवर कैन डू इट। लिटिल काइट कहता है मैं तो ये कभी नहीं कर पाऊंगा। As he looked at the others high over his head. पतंग को हम यूजुअली कहाँ देखते हैं? स्काई में, आकाश में उड़ते हुए देखते हैं, राइट? पतंग कहाँ रहती है? आकाश में उड़ते हुए रहती है। तो इसमें से एक पतंग है, ये ग्रीन वाली, छोटी वाली, इसको लगता है कि ये कभी उड़ नहीं पाएगी बिकॉज इट इज़ अफ्रेड, उसे डर लग रहा है उड़ने से। तो ये छोटी पतंग कहती है आई नेवर कैन डू इट, मैं तो कभी ये कर ही नहीं सकती। So the little kite says he never can do it. Little kite कहता है मैं ये कभी नहीं कर सकता। And he looked at the sky where other kites were flying. छोटा जो काइट रहता है ऊपर आसमान में देखता रहता है और कहता है मैं तो ऐसे कभी नहीं उड़ पाऊंगा, अपने फ्रेंड्स की तरह जो बहुत ही आराम से आकाश में उड़ रहे हैं। And then again he says, I know I should fall if I tried to fly. ये छोटा पतंग कहता है I know I should fall if I try to fly. छोटे पतंग को लगता है कि अगर उसने उड़ने की कोशिश की तो वो गिर जाएगा। वो जैसे ही आकाश में उड़ान भरेगा वो गिर जाएगा, ऐसे छोटे पतंग को लगता है। I know I should fall if I try to fly. Try, said the big kite. Only try. फिर ये जो बड़ा पतंग है छोटे पतंग को क्या कहता है? Try, only try. तुम कोशिश करो, सिर्फ कोशिश तो करो, फिर आगे का देख लेंगे। Or I fear you will never learn at all. बड़ा पतंग कहता है तुम्हें कोशिश करनी चाहिए बिकॉज अगर तुम कोशिश नहीं करोगे you will never learn at all. बिना कोशिश के कोई कुछ नहीं सीखता है। सो बड़ा वाला पतंग कहता है आई फियर यू विल नेवर लर्न एट ऑल। अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो तुम कभी उड़ नहीं पाओगे। बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। द लिटिल काइट इंसिस्ट अगेन दैट इट इज अफ्रेड दैट इट विल फॉल। सो इट इज़ वेरी स्कैर्ड, द लिटिल काइट इज़ वेरी स्कैर्ड टू फ्लाई। छोटा पतंग उड़ने के लिए बहुत ही घबरा रहा है बिकॉज इट थिंक्स दैट अगर वो उड़ने की कोशिश करता है तो वो गिर जाएगा। द बिग काइट नॉडेड। अब बिग काइट जो है उसे तंग आ गया था, उसके नाना से तंग आ गया और वो अपना सर हिला के कहता है वेल गुड बाय, आई एम ऑफ। बिग काइट कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, गुड बाय। एंड ही रोज टूवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई। पहले तो बिग काइट छोटे काइट को समझाने की बहुत कोशिश करता है और जब छोटा काइट नहीं मानता है तो बिग काइट क्या करता है? ही रोज टूवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई। ट्रैंक्विल मीन्स शांत, वो शांत आकाश में उड़ जाता है। ओके, so this stanza is over. Now let's move to the next stanza. Let's see what happens next. Then the little kite's paper stood at the side, and trembling he shook himself free for flight. अब छोटे काइट को समझाने वाला तो कोई है नहीं, बड़ा काइट उड़ गया। तो छोटा काइट सोचता है कि एक बार ट्राई कर ही लेते हैं। Then the little kite's paper stood at the side, and trembling he shook himself free for flight. पहले तो छोटे पतंग का जो पेपर है वो हिलने लगता है एंड फिर वो कांपने लगता है और फिर एंड में क्या होता है? छोटा पतंग आकाश में उड़ान के लिए रेडी हो जाता है, वो आकाश में उड़ान भर लेता है। फर्स्ट व्हर्लिंग एंड फ्राइटन। पहले तो वो जब आकाश में उड़ान भरता है तब वो क्या होता है? उसका पेपर वैसे राउंड राउंड घूमने लगता है। व्हर्लिंग मीन्स इसे राउंड राउंड घूमना।
और एट द सेम टाइम वो बहुत डरा हुआ भी है। लेकिन जैसे जैसे वो आकाश में उड़ने लगता है ऊपर ऊपर ऊपर, वो ब्रेव होता जाता है, बहुत ही स्ट्रांग होता जाता है, ब्रेव होता जाता है, उसमें हिम्मत आने लगती है। अब ही रोज थ्रू द एयर अलोन, वो अकेला ही आकाश में उड़ान भरने लगता है, बहुत ही हिम्मत से। Till the kite, till the big kite looking down could see the little one rising steadily. ये जो बड़ा पतंग है, जो बड़ा काइट है, ऊपर से नीचे देखते रहता है कि छोटे पतंग ने भी उड़ान ले ली है और वो ऊपर की तरफ उड़ता आ रहा है, स्टेडीली, बहुत ही आराम से, बिना ट्रेमलिंग, बिना शेकिंग, बिना वर्लिंग। Then how the little kite thrilled with pride. जब छोटा पतंग आकाश में उड़ान भर लेता है बिना कोई डर के, तो उसे क्या हो जाता है, वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसने अपने डर पे काबू पा लिया है। सो इट इज़ थ्रिल्ड विथ प्राइड, उसे एक अचीवमेंट का एहसास हो जाता है। एज ए सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड, पहले तो छोटा पतंग ज़मीन से उड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, फिर वो अकेले हिम्मत जुटा के उड़ने लगा अकेले, फिर वो जाके बड़ी पतंग को मिल गया, साइड बाय साइड फिर वो दोनों उड़ने लगे। While far below he could see the ground and the boys like small spots moving around. जैसे ही दोनों ऊपर आकाश में बहुत ऊपर उड़ने लगे, उन्हें नीचे एक ग्राउंड दिख रहा था। ग्राउंड पे उन्हें बच्चे, बॉयज, लड़के, छोटे छोटे लड़के कैसे दिख रहे थे, स्मॉल स्पॉट्स, छोटे छोटे स्पॉट्स दिख रहे थे जो इधर उधर मूव करने लगे थे। यूजुअली आप जब धरती से ऊपर उठने लगते हैं तो ऊपर से नीचे की चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी दिखाई देती हैं। सो इन पतंगों को भी ज़मीन पे जो बड़ी बड़ी वस्तुएं भी थी वो सब छोटी छोटी दिखाई देने लगी, जैसे कि माउंटेन एंड ऑल। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर। उन्होंने जैसे ही आकाश में उड़ान भरी और वहाँ पे आराम से उड़ने लगे, उन्होंने क्या किया, दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, वो आकाश में जहाँ पे सब शांत था वहाँ पे आराम से उड़ने लगे। एंड वहाँ उन्हें सिर्फ बर्ड्स एंड क्लाउड्स दिखाई दे रहे थे, वहाँ उन्हें सिर्फ आसपास क्या दिखाई दे रहे थे, बर्ड्स एंड क्लाउड्स। Oh, how happy I am, the little kite cried. Cried means screamed. Cried means it screamed. The little kite is very happy. Why is it happy? Because it has finally learned to fly. So it is very happy. Oh, how happy I am. It is telling that it is very happy. And all because I was brave and I tried. It is saying that it is very happy because it learned to fly, and it is all because it was brave. The little kite was brave and it tried. So the moral is, see here, little kite ने उड़ना क्यों सीखा, कैसे सीखा, बिकॉज वो बहुत ही ब्रेव था और उसने कोशिश की। लिटिल काइट ने उड़ना सीखा, पहले तो वो बहुत ही डर रहा था लेकिन फाइनली उसने उड़ना सीखा बिकॉज इट ट्राइड एंड इट वॉज ब्रेव, वो बहुत ही हिम्मत वाला था और उसने एटलीस्ट ट्राई किया। जब आप किसी चीज़ में हिम्मत दिखाते हैं और किसी चीज़ को ट्राई करते हैं तो आप उसमें सक्सेस पाते ही हैं, राइट। सो दिस वॉज ऑल्सो आवर मॉरल ऑफ द poem. Okay, so again see here, it is written by Catherine Pyle. So this was all about our poems revision, how the little kite learned to fly. I hope you will remember this poem and the moral of this poem always. Okay, so this is enough for today's class, kids. See you in the next class. In next class we will learn something new. Okay.